the graph. So let's see one of the question. The question number 1 today. I'm giving you a force and displacement graph. For this force and displacement graph, you have to calculate the work done. This is force axis. This is the displacement along x-axis. The graph is like this, and the work done you have to calculate for this 2, 4, and 6. X is in meter, force is in Newton, and accordingly this is 5 and this one is 10. You have to find out the work done for t equals to 2 seconds to t equals to 6 seconds. Find out the answer and I will wait for your answer. Integration का एप्लीकेशन ये था, ये एरिया अंडर force and displacement graph gives the work done. This is so work done can be written as area under this graph, that is 5 into 2 for this quadrilateral section, and for another quadrilateral it is 1 by 2 times the length of parallel sides 5 plus 10 multiplied with the separation between the sides. So this is 25 joule. The answer is given only by LCM. बाकी लोगों ने लगता नहीं है कि रिवाइज किया है आप लोगों ने. Let's come to the another problem. In acceleration, in a velocity and position graph is given. This is x, this one is v, and the graph is a straight line passing through origin, where this is corresponding to x equals to 2 and height being 10. This is 10, and in between there is one more value for x equal to 1, which is 5. You have to find the acceleration at x equal to 1 meter. So your time starts now. Solve this question and let me know about your answer. So if you see the solution, then the definition of acceleration is v dv by dx. ये रिलेशन पता होना चाहिए. फिर dv by dx स्लोप है वेलोसिटी और x ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन है, हाइट 10 और बेस 2. यहाँ से हमने स्लोप फाइंड कर लिया 5 और x इक्वल्स टू 1 मीटर पर वेलोसिटी देख लो ग्राफ क्या है, इट इज 5 at x equals to 1. So putting the values, we got the answer 25 meter per second scale. यहाँ से आगे बढ़ते हैं. ग्राफ पर बेस्ड उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे. एक क्वेश्चन लिखना है, find the angle of projection, find the angle of projection, find the angle of projection of a projectile if the velocity at maximum height
maximum height velocity नहीं, यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। if kinetic energy at maximum height, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। if kinetic energy at maximum height is reduced to reduced to 75% of the initial kinetic energy. Initial kinetic energy. देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। I will wait for your answer and you guys will so see the solution. Particle projected, suppose with velocity u, it will follow the path and will reach to the maximum height, and its speed at maximum height becomes u cos theta. Okay. It is given that the initial, if we write the initial kinetic energy, or if we write the final kinetic energy, it is given that it's 75% to reached to 75% of the initial kinetic energy. ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो what is the final kinetic energy we are asked? Half m u square cos square theta equals to 3/4 into half m u square. Half m u square will get cancelled, and cos theta equals to under root 3 divided by 2. Hence, theta we get equals to 30 degree. So the correct answer is given by Sarika only. किसी और ने कुछ आंसर भी नहीं दिया। सारिका एंड मनसुख। मनसुख समझ में आ गया बेटा आपको ये 30 डिग्री कैसे आ रहा आंसर? बोलो। Okay, let's move to the another problem. Preeti, I'll have to repeat it. Okay, see the language. If the kinetic energy at maximum height is reduced to 75% of the initial kinetic energy. 75% means what? 3/4 times the initial kinetic energy. Final kinetic energy at maximum height, it has speed only u cos theta, and initially it has speed u, and we know the kinetic energy is half m v square. So at the peak point, the final kinetic energy will be equals to half m u square cos square theta, which is equals to 3/4 times the initial kinetic energy, that is half m u square. So from here, the cos theta equals to 30 degrees calculated. Preeti, did you get this solution? Tell me. Yes or no? Okay. तो आगे बढ़ेंगे हम। वैसे तो सिलेबस हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होती हैं, वो तो आप खुद से करते ही रहोगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोई पार्टिकल यहाँ से मैंने थ्रो किया with respect to x-axis, if the particle is thrown at angle 60 degree with speed 10 meter per second, then find the horizontal range, time of flight, and h max. You have to find the r, time of flight, and then h max.
फाइंड कीजिए। बहुत अच्छे तनिषा, सभी लोग सॉल्व करेंगे, सारे पार्ट को एक बार सॉल्व करके मैसेज कीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले क्या होते हैं? 2u साइन थीटा बाय जी, ये हो जाता। तो u की वैल्यू पुट करते हैं 10 साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3 बाय 2 और ये हो जाता 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 3 सेकेंड या फिर 1.732 सेकेंड। So Mansukh, Neha, Divya, very good. Preeti and Tanisha. Now the horizontal range, which is equals to u square sine 2 theta by g. U square is n square sine 2 theta is sine 120 degree. We know the value of 120 degree divided by 10. So it is 5 under root 3 meter. Very good. H max की वैल्यू हो जाती है u स्क्वायर sin square theta by 2g and the result will be 10 square sin square 60 degrees by 4 divided by 2 into 10. So this one will be 15 by 4 meter. इसको आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। 3.75 meter is the correct answer. So this is a very basic question, but in case of projectile, we have one very important concept. Concept of complementary angle. Complementary angle. Try to understand the concept here. Here a particle, if a particle, try to understand first, a particle thrown with u at angle theta 1 equals to theta. तो इसके लिए horizontal range क्या लिखोगे आप? What will be the horizontal range? The horizontal range for this relation will be r equals to u square sin 2 theta by g. ये लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये फॉर्मूला है अपने पास कि u स्पीड से किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अभी किसी पार्टिकल को अगेन इट इज थ्रोन, उसी पार्टिकल को या कोई दूसरा पार्टिकल आप ले आओ, अगेन इट इज थ्रोन विथ सेम स्पीड। ऐसा कहा गया कि आप इसको सेम स्पीड से थ्रो करो, थ्रोन विथ सेम स्पीड but at angle with same speed but at angle theta 2 which is equals to, ये आपको दिया गया है थीटा 2 जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है। ध्यान से समझना मेरी बात। क्या कहा गया? दूसरी बार आप इस पार्टिकल को सेम स्पीड
with same speed but at angle 90 minus थीटा पर थ्रो की। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा? फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? अगेन यू स्क्वायर साइन, यहाँ ध्यान से समझना इस लाइन को, ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या अपने पास 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं और एक बार क्लियरली ओपन करके लिखा जाए, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता, कोई भी बताएंगे? कभी आपसे मैं पूछूं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, मैंने समझाया हुआ आप लोग सभी को। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ना भी है, मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में। Anybody, sin 180 minus theta is what? Very good, दिव्या। और कोई? This is sin theta. साइन 180 माइनस 2 थीटा को क्या लिखूंगा मैं? साइन 2 थीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आप इस पहले वाले हॉरिजॉन्टल रेंज को और जो अभी हमने कैलकुलेट किए, इनको अगर मैच कराते हो, यू विल फाइंड कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ गए या नहीं? बताइए, ये दोनों ही सेम आ गए हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बार पार्टिकल को थीटा के एंगल से थ्रो किया था और दूसरी बार पार्टिकल को 90 माइनस थीटा से थ्रो किया। तो जब भी ये एंगल, यहां से आप देख सकते हैं कि R1 इक्वल्स टू R2। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि R1 जो है ये इक्वल हो जाता है किसके? R2। तो यहाँ पर हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये इक्वल इसीलिए हो गया क्योंकि जो पहला वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 है और जो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2 है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर। θ1 and θ2 are complementary angles, complementary angles to each other। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो ये याद रखिए कि θ1 प्लस θ2 जब भी कभी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर θ1 और θ2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। तो यहाँ पर इस नोट का ये कॉन्सेप्ट को अगर मैं समराइज करके एक लाइन शब्दों में लिखूं, तो याद रखने वाली बात होगी और कई जगह क्वेश्चन में यूज भी होता है। द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम, द हॉरिजॉन्टल रेंज, द हॉरिजॉन्टल रेंज will be same for complementary angle of projection, for complementary angle। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एक पार्टिकल को थीटा पे थ्रो कर दिया, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे, दोनों को ऐड करके देखो 90 आ जाएगा। विल बी सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, प्रोवाइडेड क्या है? provided the initial velocity is same, provided the initial velocity is same। अब देखो, एक क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है और इसको कई बार नीट ने रिपीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट आ जाए। आप ये क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन क्या है कि किसी पार्टिकल को
है ना, मतलब पार्टिकल थ्रोन एट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कवर्स सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, two particles thrown with equal initial speed, but at different angle of projection, angle of projection इसका comma covers equal horizontal range, covers equal horizontal range R. Find the product of time period. Find the product of time period in terms of R. क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि दो पार्टिकल को सेम इक्वल स्पीड से थ्रो किया, लेकिन एक को अगर θ1 पे थ्रो किया तो दूसरे को θ2 पर। कब, और पहले को, दो पार्टिकल है तो मान लो पहले का टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है फर्स्ट वाले का वो आ जाता है t1, और सेकंड वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है t2। तो इन दो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट बताना है जब ये दोनों केसेस में इक्वल लेंथ कवर करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका मैं सॉल्व कर दूं। इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या है कंडीशन? इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है R1 पहले केस का, ये इक्वल है सेकंड केस के हॉरिजॉन्टल रेंज के। तो पहले केस का हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है? हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इफ, और ये गिवन है कितने के इक्वल, कैपिटल R, दैट इज इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, if the horizontal range and initial velocity is same, initial velocity is same, इसका मतलब क्या है, then the particle is thrown at complementary angles, then the particles are thrown at theta and 90 degree minus theta। ये ध्यान में रखना कि अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, इसका मतलब एक पार्टिकल को अगर थीटा एंगल पर थ्रो किया गया है तो दूसरे पार्टिकल को कितने एंगल पर थ्रो किया होगा, 90 माइनस थीटा। तो पहले केस के टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखोगे, 2u साइन थीटा बाय जी, और दूसरे केस का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे, 2u
साइन थीटा की जगह आप लिखना होगा अपने को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दिव्या बताओ? दिस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ये कितना आ गया? सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u cos थीटा बाय g। अब आप इस पहले रिलेशन को देखना और दूसरे रिलेशन। क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर P1 into P2 equals to 2u sin theta by g multiplied with 2u cos theta by g। अभी हमें इसे हॉरिजॉन्टल रेंज के टर्म में बताना है। मैं इसको 2 by g को बाहर रख लेता हूँ और बाकी जो टर्म बच रहे हैं उनको यहाँ पर मैं अरेंज कर देता हूँ। अरेंजमेंट देखना कैसा होगा ये u स्क्वायर टाइम्स 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अच्छा कोई बताएगा यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं हमारे पास। 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिखते हैं मनसुख? T1 into T2 बताओ 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता? sin 2 थीटा। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल R के इक्वल। तो यहाँ से T1 into T2 इक्वल्स टू 2R बाय जी। आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज इन टर्म ऑफ horizontal range calculated here and this one is the answer। तो आज के लिए हम इतना ही